مطلب میں پہناؤں؟ شٹ اپ، آپ کو ذرا تمیز نہیں، شکر ہے کہ ان کے نزدیک کوئی موجود نہ تھا، جاؤ پہن کر دیکھو، بعد میں مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں وہ اور شوہروں کی طرح سب چینج کرواتا پھروں گا، مجھے آپ سے کوئی امید ہے بھی نہیں۔ گڈ، سمجھدار ہوتی جا رہی ہو، ویسے تو تمہیں پورا آ جائے گا مگر پھر بھی تم ایک بار چیک کر لو۔ ناچار اس کو جانا ہی پڑا، جانتی تھی وہ تب تک باز نہیں آئے گا جب تک اپنی بات نہ منوا لے۔ کیا یہ واقعی تم ہو یا میری نظروں کا دھوکہ؟ ایک سٹائلش سی لڑکی اس کے عین سامنے آتی حیرانگی سے بولی۔ میں بحیات تمہارے سامنے وہ لڑکی؟ عورت شیر نے شگفتگی سے جواب دیا۔ تم تو ایسے غائب ہوئے کہ کوئی عطا پتہ ہی نہیں، بہت ہی بے مروت ہو ویسے، اپنے چاہنے والوں کو اتنا بھی نہیں آزماتے۔ اس لڑکی نے بھرپور گلا کیا۔ ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو آزمائیں، ہم تو خود بہت بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ ایشل کو جوڑا بالکل فٹ تھا، اس نے باہر آ کر عورت شیر کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ وہ اب گھر جانا چاہتی تھی، ایک شادی کا جوڑا لینے میں اس بندے نے اسے زج کر دیا تھا، مزید وہ اس کے ساتھ خوار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ باہر ایک سائڈ پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ کون تھی وہ؟ اس کی بلا سے جو بھی تھی، وہ اس وقت یہاں سے جانا چاہتی تھی صرف۔ ایکسکیوز می، اس نے قریب جا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ درا میٹ مائی وائف ایشل، عورت ریحان شاہ، عورت نے اس کا تعارف کرایا جس پر ایشل کے چہرے کے زاویے خراب ہوئے تھے۔ ہاؤ لکی شی از، تو یہ وجہ تھی جو تم کسی کو لفٹ نہیں کرواتے تھے؟ وہ لڑکی بہت ہی بولڈ تھی، منہل کی موجودگی کو بھی اس نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایشل، یہ درا ہے، میری یونیورسٹی فیلو۔ عورت شیر نے تعارف مکمل کیا۔ حالانکہ اگر تم یہ کہو کہ یہ درا ہے میری دیوانی تو میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کھلکھلا کر ہنسی۔ مگر میری بیوی برا مان سکتی ہے اور اس کا غصہ مجھ سے بھی برا ہے، تم بچ کے رہنا۔ اس نے درا کو ڈرانا چاہا۔ گھر چلے، میں تھک گئی ہوں۔ ایشل نے ان کی باتوں کو سرے سے اگنور کیا۔ تمہاری بیوی بہت روڈ نہیں؟ اس کو کچھ ایٹیکیٹ سی سکھا دیتے۔ حسن والوں کو سب معاف ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہیں، تم برا مت مانو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں زبردستی شادی کی شاپنگ کے لیے لایا ہوں۔ تم شادی پر آنا، پھر بات ہوگی، ابھی اجازت دو۔ وہ جلدی سے سلام دعا کرتا ایشل کو ساتھ دیے واپس پلٹا۔ تم کچھ ادب و آداب سیکھ لو، کچھ برا نہیں، تمہیں بھی اشد ضرورت ہے۔ اسے یقیناً ایشل کا رویہ پسند نہیں آیا تھا درا کے ساتھ۔ وہ خاموش رہی، مطلب اس نے سنا ہی نہیں۔ عورت شیر نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ بس یہ ایک ہی ڈریس لینا تھا، باقی کی چیزیں اور دوسرے فنکشنز پر کیا پہننا ہے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے ابھی یہاں سے لے کر چلیں ورنہ میرا ضبط جواب دے دے گا۔ ضبط کرنا سیکھ لو، بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کر لو، میں دوسری چیزیں لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے واپس پلٹ گیا۔ دکھاؤ تو ذرا کیا کیا لائی ہو۔ منہل اشتیاق سے شاپنگ بیگز کی طرف بڑھی۔ تمہیں تو موچ آئی تھی، بہت بری حالت تھی نا تمہاری؟ ایشل نے اسے گھورا جو بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم بھی تو کچھ پسند نہیں کر رہی تھی، مگر اب دیکھو یہ ڈھیر لگا ہوا چیزوں کا، منہل نے فوراً جواب دیا۔ میں نے نہیں لیا، نہ مجھے ضرورت تھی اس سب کی، جس کو تم لوگوں نے بلایا تھا اسی نے لیا سب۔ وہ دکھاتی اسے فریش ہونے چل دی۔ ہر فنکشن کے لیے ڈریس، اس کے ساتھ جوتے، جویلری سب تھا۔ اس کے علاوہ کافی سارے ڈریسز تھے، کچھ ہیوی تھے تو کچھ نارمل یوز کے لیے، رف چپلز، کاسمیٹکس کا سامان، باتھ روم یوز کی چیزیں اور کچھ اور ضروریات کی چیزیں۔ ایشل، یہ سب واقعی عورت شیر نے خریدا ہے؟ اب کیا لکھ کر دوں میں یہ بات تمہیں؟ یہ بھی؟ وہ ایک بیگ اٹھائے اس کے پاس چلی آئی۔ ہاں یہ بھی، اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ سیریسلی یہ شاپنگ عورت شیر کی ہے؟ کتنی بار بتاؤں کہ وہ اپنی مرضی سے لیتا رہا سب۔ وہ غصے سے مڑی مگر ہزار والٹ کا کرنٹ اسے لگا تھا یہ سب دیکھ کر۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کا چہرہ پل میں بھاپ چھوڑنے لگا۔ مجھے کیا پتا، میں کب سے تو پوچھ رہی ہوں تم سے۔ رکھو یہ سب اور جاؤ تم یہاں سے، چائے لے کر آؤ میرے لیے، سر دکھ رہا ہے میرا بہت۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے جھپٹتے وہ جلدی سے اس کو وہاں سے ہٹانے کو بولی۔ اوہ، تو اب ہم سے بھی پردے داریاں؟ تم مجھے غصہ مت دلاؤ، میں پہلے ہی وہ فضول انسان میرا بہت دماغ خراب کر گیا ہے۔ تم تو ناشکری ہو، اتنی اچھی شاپنگ تو کی ہے عورت شیر نے۔ وہ کہہ کر کمرے میں اب ٹھہری نہیں تھی کہ پیچھے سے کچھ بھی اس کے سر میں بچ سکتا تھا۔ بیٹھو ظاہر شاہ میر نے اسے بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور شاہ میر کا خاص الخاص ان میں سے کوئی بھی اسٹڈی روم میں بلانا کسی کو خطرے کا الارم میں ہوتا تھا۔ جی ڈیڈ، وہ احتراماً سر جھکائے نشست سنبھال چکا تھا۔ تمہاری ماما کو کافی شکایات ہیں تم سے برخوردار۔ آپ کی مسز کو اگر مجھ سے شکایات ہیں تو یقیناً میرے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، مگر میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے بیٹا، ہم نے بھی کام کیا، اب تک کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ آپ آج کل ضرورت سے زیادہ غیر حاضر ہیں، حالانکہ عورت شیر کی شادی ہے اور آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آپ بڑے ہیں اور اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ I'm sorry ڈیڈ، میں کچھ کام کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ الجھے ہوئے تو ہو تم، مگر الجھن کوئی اور لگ رہی ہے۔ بات کیا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈ، سب ٹھیک ہے، بس ایک کیس کی وجہ سے بس۔ Are you sure؟ Yes ڈیڈ۔ گڈ،
अब आप अपने कामों को कुछ दिन के लिए ज़रा साइड पर कर दें और घर में टाइम दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी मम्मा आपके लिए 2-4 लड़कियां पसंद किए बैठी हैं। गालिबन शादी में वो तुम्हें मिलवाने वाली हैं। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर रहा हूँ, अपना माइंड सेटअप कर लो। अब अपनी मामा को मज़ीद मत सताओ और किसी को अपने लिए सिलेक्ट कर लो, चाहे अपनी पसंद से, चाहे अपनी मामा की पसंद से। मगर अब इस मामले को सीरियस लो, हर काम का एक वक्त होता है। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। ये फंसा शामिर वही हुआ जिसका डर था। मैं समझ गया डैड, अब मैं जाऊं? जाओ। उसके पास यही कुछ दिन थे जायशा को ढूंढने के लिए, वरना शादी पर अगर उष्णा ने किसी को पसंद कर लिया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती थी। वो गाड़ी की कीज उठाते बाहर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं यासिर? सर समझे, कारून का खजाना हाथ लग गया। हमारा काम तो समझे हो गया। यासिर पहेलियाँ मत बुझवाओ, सीधी बात बताओ। सर बात यह है कि सुमरो की एक बहन भी है, बहुत खुफिया ज़राए से पता चला रहे हैं कि वो कोई 2 महीने पहले अपने बाप को तलाश करती यहाँ आई थी। मगर वो लोग उसको अपनी बहन तस्लीम नहीं करते, बल्कि उसे अपने बाप की नाजायज़ औलाद बोलकर भगा दिया। पता चला है कि वो उसे मरवाना चाहते थे ताकि वो उनके लिए आगे जाकर कोई मसला ना बने। फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई, पाकिस्तान में ही है या वापस चली गई, जिंदा है या मर गई कुछ पता नहीं। अगर वो मिल जाए तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। तो ये कि सर उसके बारे में पता चल गया और हम अब वहीं जा रहे हैं। वो लड़की अगर गवाही देने को मान गई तो समझे केस हमारा हुआ। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब आपने इस मामले में रिसर्च करने का बोला तभी मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, और फिर कुछ ज़राए हमारे भी हैं, बस वहीं से मालूम हो गया। गुड जॉब। मोमिन शाह वाकई मुतासिर हुआ था उसकी कारकर्दगी से। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग कदरे सुनसान से इलाके में दाखिल हुए। वहाँ आबादी कुछ ज़्यादा ना थी, कदरे फासले पर कहीं कहीं घर बने हुए थे। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो रास्ता आगे तंग था, उसकी बड़ी सी गाड़ी अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। 2 गलियां गुजरकर जब वो दाएं जाने मुड़े तो कोई खातून अंधाधुंध भागती उसी तरफ आ रही थी और मोमिन शाह से टकराई। तसादुम इत्तफाकन था, तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वो गिर जाती अगर मोमिन उसे सहारा ना देता। खातून कोई आपका पीछा कर रहा है क्या? आप क्यों भाग रही हैं इस तरह? उसका सर चकरा रहा था, सांस बुरी तरह फूली हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। आर यू ऑल राइट? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो हवास भागता सी जल्दी से उससे कुछ दूर हुई। चेहरा उसने पल्लू से छुपा रखा था। आगे बढ़ना चाह, इससे पहले उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ से आई थी। उसी पल नकाबपोश उसका पीछा करता उधर ही आ रहा था। जाने कौन था और क्यों उसके पीछे पड़ा था। नकाबपोश ने पिस्टल का रुख उसकी तरफ किया और अगले ही पल फायर कर दिया। वो अपने साथ खड़े बंदे को परे धकेल देना चाहती थी मगर किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। आन की आन वहाँ क्या हुआ। सनसनाती हुई गोली सीधा मोमिन शाह के कंधे पर लगी और खून जैसे फव्वारा बनकर फूट पड़ा। उस बंदे ने दोबारा उस लड़की पर फायर करने के लिए निशाना बांधा जब एक ही जस में मोमिन ने बिना अपनी तकलीफ की परवाह किए उसे अपनी गिरफ्त में लिया और नीचे झुका, वरना ये गोली सीधा उस लड़की के सर में लगती। लड़की की चीख बेसाख्ता थी। यासिर ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर पिस्टल निकाली, मगर इससे पहले कि वो फायर करता वो बंदा भाग चुका था। सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ यासिर, तुम इनको ले जाकर गाड़ी में बिठाओ, उसने अपनी तकलीफ को जब्त करते जवाब दिया। प्लीज़ इन्हें लेकर चलें, इनका बहुत खून बह रहा है। इस सारे अरसे में उस लड़की ने पहली बार लब कुशाई की। यासिर ने उसे सहारा देकर उठाया और साथ लेकर चलने लगा। उनकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, उसके सारे कपड़े खून आलूद हो चुके थे, खून भल भल बह रहा था। ओह खुदाया, यहाँ से हॉस्पिटल भी दूर है। यासिर को मज़ीद परेशानी हुई, इनका खून तो रुक ही नहीं रहा। उसे गाड़ी में बिठाते यासिर ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली तो वो मोहतरमा बिना कुछ सोचे समझे मोमिन के साथ ही बैठ गए। वो अभी तक पूरे होश में था। उस बंदे की कुव्वत कमाल की थी। उन्हें 10 मिनट हो गए थे, अभी तक अस्पताल के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। वो लोग काफ़ी दूर निकल आए थे शहर से, इसीलिए मुश्किल हो रही थी। मोमिन पर गनूद की तारी हो रही थी, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। सर आंखें खुली रखें। यासिर बार बार मुड़कर उसको देख भी रहा था। हॉस्पिटल कितना दूर है? इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप और तेज़ गाड़ी चलाएं। वो उसको आंखें बंद करता देखकर सब भूले अपना दुपट्टा उसके कंधे पर बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके तो हाथ पाँव फूल गए थे। अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो बस 5 मिनट तक हम पहुंच जाएंगे। आप कोशिश करेंगे होश में रहें। सुनिए प्लीज़, आप आंखें खुली रखें। आप मुझे सुन रहे हैं? वो उस पर झुकी, उसके बाजू पर दुपट्टा लपेट रही थी। मोमिन शाह ने बमुश्किल आंखें खोली और खुद पर झुकी उस लड़की को देखा। धुंधले से मंजर में उसने जो चेहरा देखा वो उसको अपना ही कोई गुमान लगा था। उसने पूरा जोर लगाकर फिर से आंखें खोली। वही चेहरा फिर से निगाहों के सामने था। ये वो कैसे हो सकती है? नहीं, वो यहाँ कैसे? ये मेरा वहम हो सकता है। आंखें बंद होने से पहले उसने वही चेहरा एक बार फिर देखा और उसके साथ ही उसके हवास काम करना छोड़ गए। अच्छे खासे दुश्वार मरहले के बाद वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाने में कामयाब हुए। पुलिस हमेशा की तरह यहाँ भी ताख़ीर से पहुंची और उनके आने से कबल हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट करने पर रजामंद न थे। वो उन लोगों की बेहिसी पर साकित थी। इंसानी जान की कोई वक़्त ना थी। वो उन
किसी को परवाह ही नहीं थी यहाँ, जबकि वो जिस मुल्क में पली बड़ी थी वहाँ तो जानवरों के भी हकूक़ का ख्याल रखा जाता था और यहाँ ह्यूमन राइट्स की भी खुली खिलाफ वर्जी थी। क्या इतनी सस्ती थी यहाँ इंसानी जान? वो सर थामे अनजान नज़रों से इधर उधर देख रही थी। यासिर अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहा था सारी। मोमिन के घर पे इन्फॉर्म करने का जहन में ही नहीं रहा, वरना यकीनन ये सारी ख्वारी बर्दाश्त देना करना पड़ती। आपको आराम करना चाहिए मेरे ख्याल में, आप अब अपने घर जाएँ। यासिर ने उस अजनबी लड़की को देखा जो तब से चुपचाप किसी बुत की तरह की पोजीशन में बैठी थी। वो यकदम जैसे नींद से जागी, मगर जाए कहाँ? वहाँ से तो पहले ही भागी थी। अगर जाती तो यकीनन इस बार मारी जाती, और कोई ठिकाना भी नहीं था उसके पास। पहले ही कितनी मुश्किल से वो जगह तलाश की थी सर छुपाने को, मगर यहाँ भी कब तक बैठी रहती? जाना तो था। वो सोगवार सी बोझल कदमों से उठी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? वो मुझे इनकी खैरियत मालूम करने के लिए आसानी रहेगी। उसने कुछ हिचकिचाते हुए मुद्दा बयान किया। हालांकि वो उसके होश में आने तक रुकना चाहती थी, लेकिन जब उसके घर वालों को पता चलता वो लोग जाने उसके साथ कैसा बर्ताव करते। उसकी वजह से उनका बेटा जख्मी हुआ था, खुदा न खास्ता उसकी जान भी जा सकती थी। जी ज़रूर, जी ज़रूर, आप ये कार्ड रख लें। उसने विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसको थमाया। शुक्रिया। वो मुज़महिल सी वापस पलटी। एक्सक्यूज़ मी मिस, यासिर ने कुछ सोचकर उसे पुकारा। जी। उसने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। आप कहाँ जाएंगी? आई मीन आपके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कौन था जो आपको मारना चाहता था? किसी की कोई दुश्मनी है आपके साथ? यासिर ने एक साथ सारे सवाल जो जहन में बुला रहे थे पूछ लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती कुछ भी, और कहीं भी रुक जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अगर मुनासिब समझें तो आपके रहने का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। यासिर ने कुछ सोचकर ऑफ़र की। मोमिन शाह को गोली लगी थी, मगर वो बंदा इस लड़की को मारना चाहता था। मोमिन की फैमिली इस मामले की तह तक जाएगी और ऐसे में इस लड़की की ज़रूरत पड़नी थी। वो कुछ शशोपन में पड़ गई, मगर क्या करे, कोई चारा भी ना था इसके सिवा। आप परेशान ना हो, ट्रस्ट कर सकती हैं आप हम पर मैडम। यासिर उसे अपने साथ लिए अपने फ्लैट पर आया। फ़िलहाल उसे यही समझ आया, आप यहाँ आराम से रहें, यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ है। अंदर से लॉक कर लें, कोई भी नहीं आएगा, और आप लॉक खोलेंगी नहीं। बाकी आपको कोई भी परेशानी हो आप कॉल कर सकती हैं, नंबर आपके पास है। आप, मेरा मतलब आप कहाँ रहेंगे? फ़िलहाल तो हॉस्पिटल जाऊँगा, मोमिन के पास उधर ही रुकूँगा। उसके बाद भी बहुत ठिकाने हैं मेरे, आप फ़िक्र मत करें। मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी मैनेज कर लूँगा। आपका बहुत शुक्रिया भाई, यू आर मोस्ट वेलकम बहना। अब मैं चलता हूँ, सब ठीक है, फ़िक्र की कोई बात नहीं। गोली निकाल दी गई है, मगर ज़्यादा खून बह गया था, इसलिए अभी ने आईसीयू में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर की स्टेटमेंट सुनकर यासिर की रुकी सांस बहाल हुई थी। यासिर से उसकी खैरियत की इत्तला मिलने के बाद नवाफिल पढ़कर वो उसकी सेहतयाबी की दुआएं मांगने के बाद बालकनी में आ बैठी। उस वक्त वो हर चीज़ से बेनियाज थी। सोचों का महवर वो अजनबी था जो उसकी वजह से बिस्तर मर्ग पर पड़ा था उस वक्त। मोमिन शाह, ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया उसने। किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने यकसर अजनबी होते हुए भी मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या नाम दूं तुम्हें, क्या कहूं, इंसान या फरिश्ता? मगर इंसान आजकल इतने बुलंद ज़र्फ़ कहाँ हैं? इस नफसा नफसी के दौर में सच्चे और खरे लोग कहाँ मिलते हैं अब? इंसानियत की खातिर अब कौन मरता है? किसी के बारे में कौन सोचता है? जैसे तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक और जान को बचाया। जान गंवाना आसान तो नहीं, ये जान इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती कि यूं ही किसी अजनबी लड़की पर कुर्बान कर दी जाए। यहाँ तो खून सफ़ेद हो गए, अपने अपनों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्यों तुम उस वक्त फरिश्ता बन गए? यहाँ तो सिरे से इंसानियत ही नापैद हो चुकी है, मगर तुम तो इंसानियत की मेराज को पहुँचे हुए हो। तुम्हारा ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? तुमने जो किया वो बेलौस है, अगर इसका कोई मोल नहीं है। इंसानियत की कोई कीमत नहीं, एहसास भरा दिल खरीदा नहीं जा सकता। मैं कैसे खुद को माफ़ करती अगर तुम्हें कुछ हो जाता? तुम अनमोल हो, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो।